Subnet means subnetwork. So in our network, let's say that this is a network. We're having 4 types of addresses. Okay, in any network, you have 4 types of addresses. One is called network address. And one is called broadcast address. Broadcast address. Network address is always used to identify the machine's network. Means whatever machines you have, like PCs, you have laptops in your network, you have servers. All these are machines. Okay. And these machines need IP address. When they will communicate, they need IP address. So this network address, we cannot give to any of these machines. Okay. We cannot configure this network address to any of these machines. Why? Because it is the identity of all these devices network. Okay. All these machines belongs to which network? This is the network address which identifies it. That is why it is reserved. It is a reserved address. You cannot give this network address to any machine as their IP address. Similarly, broadcast address also is reserved. We cannot give this broadcast address to any laptop, any PCs, any server machines. Why? Because this broadcast address is used by any machine in the network to communicate with all the machines in the network. Because broadcast communication is one-to-all communication. So if any system, okay, suppose this PC wants to communicate to all the laptop, all the servers in the network, then it can use broadcast address to communicate. Suppose this laptop wants to communicate to all the PCs, all the servers in the network, then it can also use the same broadcast address to communicate. Suppose a server wants to communicate to all the PCs, all the laptop in this network, then also it can use the same broadcast address to communicate. So here, this broadcast address, any machine can use to communicate with all the machines in the network. That is why it is reserved. You cannot configure this broadcast address as an IP address of your machine. So if we cannot configure network address or broadcast address in our machine in the network, then which address we can configure? So that is when first valid host address comes in. Address to last valid host. Valid host address. First valid host to last valid host. This is what we call as valid host range address. Valid host range. So this valid host range address are those host addresses what we can give to our machines, like our PCs, our laptop, our servers. Okay. Or whatever devices you have on your network, you can configure IP address from this range. Okay. So always remember this, that in a network, you have the network address, which identifies all the machines in network. So you cannot give the network address as an IP address of your machine. You have the broadcast address, which is used by any machine to communicate with all the machines in the network. So this address also you cannot give to your machine.
as an IP address. So the address what you can give to your machine, this is always coming from this valid host range, means first valid host to last valid host. Means the first host machine to whom you are giving the first host IP. Okay, this is your first valid host address, and the last host machine to whom you give the last host IP, that is your last valid host address. In between first and last, that is your valid host range. From this range, you can give any IP address. So if we are calculating the valid host addresses in our class C, class B, or class A network, valid host address, then this is what the calculation looks like this. First of all, if we are talking about class A, then in class A, we have how many host bits? In class A subnet mask, how many host bits we have? Everyone? 8. How many host bits? Host? 24. 24. 24 host bits, right? Yes. Host bits. So if we power it up with 2 raised to 24, then how many we are getting total? 16 triple 7 216. That is your total number of IP address you are getting in class A network with class A subnet mask. Total number of IPs. This total number of IPs include the network address and broadcast address as well. Okay, means your valid host range address plus network and broadcast. It is included. So always when you need to calculate valid host address, then always you need to subtract 2. This 2 is your network and broadcast. You are subtracting it, and that is how you get your valid host, which is 167777214. 4. So that is your valid host address. In class A, you are getting it. Address. Similarly, if we are talking about class B, in class B, we are getting how many host bits? 16. So that is your 16 host bits. So 2 raised to 16 is how much? The 65536. 65536 minus 2 is equal to 65534. So that is your valid host address you are getting. And similarly, in class C, how many host bits you have? 8. 8. So that is your 8 host bits. So if we power it up with 2, we are getting what? 256. 56. That is total Minus number 2. of IPs. And we are subtracting the 2 addresses. Minus 2 gives you what? 250. Network and broadcast. Valid host address. Host address. Understood the calculation, right? Yes, sir. Okay. So this is always remember that in class A, we're getting maximum number of host IPs, right? Maximum host IPs we are getting in which class? Class A. So that is why class A is used in big network. Okay. In big network, you will see class A addresses. Class B, 65,534 IPs you are getting means you will see it in medium-sized network. Okay. So medium-sized network, you will see it. And class C, you are getting what? 254. So that is one small network. Small network. Okay. So that is how exactly these 3 subnet masks are classified for big network, from medium-sized network, for small network. Okay. So most of the time you will be dealing with class C. Sometimes you will deal with class B. Okay. But class A, very rare you will see unless you work in a very big organization on a very big project where you are having lakhs of systems, they need IP addresses. Okay.
Class C and B is very much used. All right. So this is what our calculation to find the valid host address. You can see that the same thing, right? Yes, sir. All right. So now let's discuss subnetting. Okay. First of all, subnetting definition is given here. The process of dividing one big network and creating small networks, which are called as subnet or subnetwork. Okay. Means dividing a large network and creating smaller networks out of it. The process is called subnetting. And for doing subnetting, always you must have a requirement. Okay. So what is the requirement? Can you see the requirement here? That is sales, 100 systems, finance, 60 systems, HR, 20 systems, marketing, 4 systems. Okay. Means for 100 systems, we need how many host IPs? Minimum 100. Every system needs one IP address, right? So for 100 systems, how many valid host IPs needed? 100. 100 IPs, right? For 60 systems, how many host address needed? 60. 60. For 20 systems, how many? 20. 20. And for 4 systems, how many? 4. 4. Okay. That is your valid host address is needed. Okay. So this is your requirement. Always you must have it. Okay. So how exactly you can do subnetting for this requirement? This is your methods. 2 methods you can use always to perform subnetting. One is the old method and one is the most popular method, what we use these days. The old method is the FLSM method, stands for fixed length subnet mask. Using this method, if you do subnetting, then the requirement must be fixed. Fixed means if you are having sales department 100 systems, means your finance also must have 100. 100 systems. Your HR must have 100. 100. Your marketing is must have 100. 100. Means all the requirements, it must be what? Fixed. Fixed. Now, can you see this type of requirement these days in any organization where a company is having 4 departments, where they are having the exact same number of systems in all the departments? No, you will not see that. Okay. Because these days in the company, you are having lots of departments are there. But in some department, you will see some systems. Another department, you will see less number of systems. Okay, more number of systems. Like this requirement always is variable these Variable. days. Okay, it is changing. You are not getting the same type of requirement these days. That is why FLSM method is not used these days. It is an old method to perform subnetting. Okay, whichever company you will be working as network engineer, as system engineer, you are not going to be using FLSM method to perform subnetting. Instead, VLSM method you will use, where the requirement is what? Variable. Okay, variable requirement. That is why the name itself is variable length subnet mask. So in this particular example, we're going to be performing subnetting using VLSM method because this is what you are going to use in the organization. So to perform subnetting, always you need to remember the default subnet mask. Company will provide you what network address you have to use, that is your IP address, and what subnet mask you will be using to perform subnetting for this requirement. Okay, you will have to focus on the subnet mask, specifically on the subnet mask. Okay, if you are getting a class C IP, that is very good. If you are getting class B IP, it doesn't matter whatever IP address you are getting. What matters is what subnet mask we are getting. Okay, so company will always give you these informations and they will tell you to perform subnetting based on this requirement. So the very first thing what you need to do,
That is, arrange all the requirements from highest to lowest. So this is our requirement of 100 system. That is your first. Then we have the second highest, 60. Then the third highest, 20. And the least one, that is 4. You have to arrange it. Okay. You cannot start submitting from any requirement suddenly. Okay. Always you need to perform submitting from highest to lowest requirement. So this is our default subnet mask of /24, where we are having total 24 ones and 8 zeros. Now the thing here is, when you do subnetting, okay, subnetting is not performed in network octets. You will not perform it in network octets. Okay, but you will perform subnetting in which octet? Host. Host. Always subnetting is done on host octet, okay, of your default subnet mask. So this is class C subnetting what we are doing, because this is the class C subnet mask we are having. Similarly, you have class B subnetting, class A subnetting, but most of the time you will do class C and class B. Okay, sometimes class B, but class C is very popular. You will do it. So this is what exactly our requirement. Okay. The first subnet, what we are creating, that is called subnet 0, because subnet, in networking, we have everything starting from 0 itself. That is why exactly that is our first subnet. Sales department, we have how many systems? 100. For 100 systems, we need minimum 100 valid host IPs. Okay. Minimum 100 valid host IPs are required. So this is when what we are doing here is we are selecting the power of 2, which is giving us a value more than 100, not less than 100, more than 100. So which power of 2 gives us more than 100? To the power 7. 2 raised to 7, right? So 2 raised to 7 gives us what? 128. 128. So this 128, that is your total IPs you are getting, okay, for this requirement 100. Total IPs. Total IPs in the sense network and broadcast is included in this 128. So we are minus 2, we're subtracting, then we're getting what? Valid host. So valid host formula is always what? Minus 2 of total IPs. So when you get your valid host address, always compare this value with the requirement. Okay. This value, what we are getting by subtracting 2, it should be equal to the requirement, equal to, or it should be greater than the requirement. Greater than. It should never be less than the requirement. Okay. तो रिक्वायरमेंट तुम्हारा क्या है? 100 सिस्टम्स का है, राइट? और तुम्हें कितना आईपी मिल रहा है? वैलिड होस्ट 126, जो कि ग्रेटर देन है. ओके, सो इट सेटिस्फाइज आवर क्राइटेरिया. Okay, if it is not greater than, but if it is equal to 100, that is also okay. Okay, but it should never be less than the requirement. Okay, requirement से छोटा नहीं होना चाहिए. रिक्वायरमेंट से हमेशा इक्वल टू होना चाहिए या फिर बड़ा होना चाहिए. ओके, वरना सर किसी सो को आईपी अंडर, मिलेगी नहीं फिर. हाँ, करेक्ट. सो ये प्रोसेस समझ में आया? पावर सिलेक्शन कैसे कर रहे हैं? एवरीवन अंडरस्टूड, राइट? यस सर. Now we need to find the subnet mask for 100 systems. For finding the subnet mask of 100 systems, we are using default subnet mask, which is given by the company /24. So in subnetting, we are always using our host bits. We are not using network bits here. Sir, Subnetting is always performed in host bits. हाँ बोलो. Sir, in default, there is always 8 host bits. Yes, that is why we call it default, right? 8 host bits are always there, and 24 network bits in class C. Yes, sir. So हम ठीक है लोगों के सर. पास टोटल कितने होस्ट बिट्स हैं? 8 होस्ट बिट्स हैं, 8. राइट?
अभी हम लोगों को ये कैलकुलेट करना है कि 8 होस्ट बिट्स में से हम लोगों को कितना होस्ट बिट्स चाहिए 100 सिस्टम्स के लिए। ओके। तो 100। आंसर, नहीं, आंसर हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया इधर पे, अच्छा अच्छा। 7। राइट। हम्म। ये जो 7 निकाले हैं, यही तुम्हारे नंबर ऑफ क्या हैं, एज बिट्स हैं रिक्वायर्ड। होस्ट बिट्स। ओके। ये तुम्हारे रिक्वायरमेंट के टू हिसाब से निकल रहा है। टू का तुमने, पावर। हाँ, तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या है, 100 सिस्टम्स का है। अभी हम लोग देखेंगे कि कौन सा 2 का कौन सा पावर 100 से ज्यादा दे रहा है। 2:6 अगर देखते हैं तो 2:6 से कितना आता 64। है, 64। 64 छोटा हो जा रहा है रिक्वायरमेंट से। राइट। तो इसके लिए हम लोग इसको नहीं ले रहे हैं। तो उसके ऊपर कौन सा है, 2:7, 128। और 120 - 2 से कितना आ रहा है, 126। तो ये जो वैल्यू आ रहा है, इसको इसके साथ कंपेयर करके देख रहे हैं कि ये इक्वल टू है या ग्रेटर देन है। तो अगर दोनों में से एक है तो फिर ठीक है, पावर सिलेक्शन हम लोगों का करेक्ट है। ओके। और अब हम लोग निकाल रहे हैं कि सबनेट मास्क। ओके। व्हाट सबनेट मास्क वी शुड यूज फॉर 100 सिस्टम्स। तो जैसे कि हम लोगों ने 2:7 लिया है, यही हम लोगों के होस्ट बिट्स हैं जो हम लोगों को चाहिए आउट ऑफ 8 होस्ट बिट्स। तो ये 8 होस्ट बिट्स में से 7 जीरोस तुम्हें रखना है, तो ये हम लोग फोर्थ ऑक्टेट के जीरोस लिख रहे हैं। ओके। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। देन वन। और तो ये जो है, ये हम लोग होस्ट बिट्स इधर से कैलकुलेट कर रहे हैं, इधर से आ रहा है। और ये तो ऑक्टेट है, राइट। ऑक्टेट में कितना बिट्स होते हैं, 8 8। बिट्स होते हैं। तो 7 तो जीरो रख लिया, अभी लास्ट वाला जीरो क्या हो जाएगा, वन। 1। राइट। ये वाला बिट तो जीरो नहीं रह सकता ना, यस क्योंकि सर। 7 होस्ट बिट्स चाहिए। 7 होस्ट बिट्स अगर जीरोस हैं तो लास्ट बिट जो होगा वो 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या है, 128 है। 128। राइट। तो तुम्हारा पूरा ऑक्टेट का वैल्यू क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑक्टेट का वैल्यू आ जाएगा 128। 128। राइट। राइट। राइट अंडरस्टूड सर। हाउ वी आर गेटिंग 128 हियर। तो अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कितने वंस हो गए अभी। वंस मतलब कितने नेटवर्क बिट्स हो चुके हैं। तो पहले से हम लोगों के 24 तो है ही। राइट। ये तुम्हारे 24 नेटवर्क बिट्स हैं। अभी ये वाला बिट जो है, ये भी चला गया नेटवर्क पे, तो क्या हो गया, 25। 25। ये देखो सारे जगह पे 25 आ रहे हैं, /25। राइट। ओके, अंडरस्टूड दिस 2 स्टेप्स। यस सर। ये दोनों स्टेप समझ लिया, राइट। ठीक है। अभी नेटवर्क एड्रेस को लिखना है, 192.168.100.0। तो जो एड्रेस तुम्हारे कंपनी ने तुम्हें प्रोवाइड किया है उसी एड्रेस को इधर पे डाल दो डायरेक्टली। ओके। अभी फर्स्ट वैलिड होस्ट, ये फॉर्मूला है। ओके। ये सारे फॉर्मूला के बेसिस पे तुम्हें निकालने हैं। बट सर तो नेटवर्क फर्स्ट एड्रेस में वो लास्ट वाली बिट ऐड करेंगे सर, 25 वाली ना। कौन सा, सर जैसे वो आप कह रहे हैं ना, ऊपर नेटवर्क एड्रेस में एज इट इज डाल देना है। हाँ, /25, हाँ, फिर करेक्ट टू है। जो टू भी दी सबनेट पावर मास्क सेवन तुम्हारे, वन जो आया हाँ, 25। करेक्ट। ओके, क्योंकि /24 तो हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं ना 100 सिस्टम्स के लिए, हम लोग हम्म। /25 यूज कर रहे हैं, तो उसी को लिखना है। ओके। यस सर। फिर फर्स्ट वैलिड होस्ट का फॉर्मूला जो है, ये कहता है कि जो भी तुम्हारा नेटवर्क एड्रेस होगा, ओके, जो भी नेटवर्क एड्रेस आएगा उसका जो फोर्थ ऑक्टेट होगा, नेटवर्क एड्रेस का फोर्थ ऑक्टेट, ओके, उसके साथ तुम्हें +1 करना है। +1 मतलब कि ये हम लोगों का नेटवर्क एड्रेस है, राइट, ये वाला। तो इसका फोर्थ ऑक्टेट कौन सा है, ये जीरो है ना। जीरो। हाँ। तो ये जो जीरो है इसके साथ क्या करना है, +1। 1। ओके। तो ये दिख रहा है, फर्स्ट विलेट होस्ट आ गया 100.1। यस सर। ठीक है। मतलब कौन सा भी वैल्यू हो इधर पे, नेटवर्क एड्रेस मान लो तुम्हारा नेटवर्क एड्रेस इधर पे 96 है, मान लो लास्ट ऑक्टेट पे, तो 96 के साथ 1 ऐड करके कितना आएगा, 97। 97। फॉर्मूला है। ओके। देन यू नीड टू फाइंड द ब्लॉक साइज। ओके। ब्लॉक साइज फॉर्मूला is whatever subnet mask you have got in the fourth octet। तो फोर्थ ऑक्टेट पे कितना निकला, 128। इसको हम लोग क्या करेंगे, 256 से माइनस कर देंगे।
256 that is a fixed value you are getting. अभी 256 क्यों क्योंकि हम लोग ऑक्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? ऑक्टेट इज व्हाट, 8 बिट्स का होता है ना? जी सर। यस सर। अभी 8 बिट्स में 2 to 8 कितना आता है? मैक्सिमम 128 256। 256 256 तो 256 मतलब हम लोग काउंट किधर से करते हैं? 0 से 255 तक काउंट करते हैं, राइट? दैट इज 256। सर। इसी वजह से 256 जो है ये फिक्स्ड है। ओके, so this 256 it's fixed value, and whatever subnet mask you have got from your requirement you have to subtract it. तो जो भी सबनेट मास्क तुम्हें फोर्थ ऑक्टेट से मिला है उस वैल्यू को माइनस करके तुम्हें ब्लॉक साइज निकालना है। ओके, अभी ब्लॉक साइज क्यों निकालते हैं? ताकि नेक्स्ट सबनेट एड्रेस निकाला जा सके। ओके, नेक्स्ट सबनेट एड्रेस मतलब मैं कौन सा डिपार्टमेंट के लिए कर रहा हूँ सबनेटिंग? सेल्स के लिए, राइट? Yes. अभी हम लोग सेल्स के लिए कर रहे हैं, राइट? 100 सिस्टम्स के लिए। मेरा नेक्स्ट डिपार्टमेंट कौन सा है? फिनांस, राइट? तो जो नेटवर्क एड्रेस कंपनी ने दिया है मुझे, ये 100.0, ये तो मैंने यूज कर लिया ना इधर पे सेल्स पे, है कि नहीं? ये वाला जो सर। नेटवर्क एड्रेस है ये तो मैंने यूज कर लिया इधर सेल्स के लिए। तो मुझे फिनांस के लिए नया एक नेटवर्क एड्रेस चाहिए होगा, है कि नहीं? सेम एड्रेस तो यस यूज सर। नहीं कर सकते ना। फिनांस पे सेम नेटवर्क एड्रेस यूज नहीं कर सकते, वो डिफरेंट नेटवर्क होगा फिनांस डिपार्टमेंट का। तो वही फिनांस डिपार्टमेंट का जो नेटवर्क एड्रेस है वही हम लोग निकाल रहे हैं इधर नेक्स्ट सबनेट एड्रेस कह के, ठीक है? तो ये देखो, ये जो एड्रेस मैंने निकाले हैं ये सेम एड्रेस है ना फिनांस डिपार्टमेंट पे? यस सर। सो मतलब ब्लॉक साइज से नेक्स्ट सबनेट एड्रेस निकाला जाएगा। करेक्ट। Yes, sir. तो ये तुम कैसे निकालोगे? ये जो भी ब्लॉक साइज होगा उसको जाके तुम्हें ऐड करना है फोर्थ वाले ऑब्जेक्ट पे। ऐड करो उसको, तो कितना आ रहा है? 128। 128। ओके, तो फोर्थ वाले भी क्यों क्यों ऐड कर रहे हैं? ओके, थर्ड वाले पे ऐड कर सकते थे या सेकंड वाले पे ऐड कर सकते थे, राइट? फोर्थ वाले ऑब्जेक्ट पे ही क्यों? क्योंकि क्लास ये सी है ना। क्लास सी हाँ। फोर्थ वाला ऑक्टेट पे, फोर्थ। यही फोर्थ वाला ऑक्टेट तुम्हारा स्टार्टिंग ऑफ होस्ट बिट्स है, यही से स्टार्ट हो रहा है, राइट? होस्ट बिट्स, यस सर। राइट? इसी वजह से तुम इधर पे ऐड कर रहे हो। ओके, तो ये निकल गया तुम्हारा नेक्स्ट सबनेट। एक बार नेक्स्ट सबनेट एड्रेस निकल गया तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस, लास्ट विलेज होस्ट एड्रेस निकालना बहुत ईजी है। तुम्हें क्या करना है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालने के लिए नेक्स्ट सबनेट के जो एड्रेस है, ओके, नेक्स्ट सबनेट एड्रेस का जो फोर्थ ऑक्टेट होगा उससे -1 कर देना है। फोर्थ ऑक्टेट कौन सा है नेक्स्ट सबनेट का? 128। 128। 120 -1 कितना आएगा? 127। 127, ठीक है? और लास्ट विलेज होस्ट निकालने के लिए जो भी तुम्हारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस आएगा उसके फोर्थ ऑक्टेट से -1 करो तो कितना आएगा? 126। 126। ये फॉर्मूला है। ओके, तुम्हें फोर्थ वाले ऑक्टेट से -1 करना है। ओके, क्योंकि फोर्थ वाला ऑक्टेट हम लोगों का होस्ट ऑक्टेट है। ओके, तो लास्ट विलेज होस्ट निकालने का फॉर्मूला तुम्हारे ब्रॉडकास्ट एड्रेस के फोर्थ ऑक्टेट से -1 करके निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड? Sir, तो explain, यही, sir. हाँ, टेल मी, Sir, explain also. कुछ And पार्ट? then subnet address, Next subnet on address. broadcast address. Okay, next subnet address, how we are getting? That is, we are getting it by adding the block size. Whatever block size you are getting, okay, that is Okay, the sir. subnet mask. We're subtracting it from 256, which is Okay. fixed value. Whatever block size you are getting, you just need to add it into the fourth octet of your network address. Okay. When you add it, you are getting what? The next subnet address, Yeah. which is your finance department network address. Okay. Okay. So to get the broadcast address, you just need to subtract 1 from the fourth octet of next subnet. Okay. So 128 minus 1 is what? 127. Yeah. That is your broadcast. Okay, sir. And to get the last valid host address, you need to subtract 1 from the broadcast address of fourth octet. Okay, sir. 126. Okay, sir. Okay.
Okay. All right. Understood this example, all of you? Yes, sir. यस सर यस सर देखो, अगर ये समझ लेते हो तो बाकी जो तीन जो रिक्वायरमेंट्स है इनके सबनेटिंग भी आराम से कर सकते हो। अगर इधर पे कुछ भी प्रॉब्लम है मुझे अभी बताओ। कैलकुलेशंस कुछ भी समझ नहीं आया या कौन सा स्टेप समझ नहीं आया, you can tell me right now, because these three requirements also you are doing the same way. Good evening, sir. I am uh, getting late, sir. yes, we're doing subnetting, Okay, sir. we're explaining subnetting how it is done. सर Okay. एक बार रिपीट कर दीजिएगा सर। कौन सा स्टेप वो बताओ मुझे, ये कौन सा वाला स्टेप समझ नहीं आया है? सेल्स डेप्ट नहीं है, फाइनेंशियल डेप्ट का फाइनेंस। अच्छा, फिनांस का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों के रिक्वायरमेंट क्या है फिनांस डिपार्टमेंट का? 60, राइट। तो ये मेरा सबनेट 0 है, तो नेक्स्ट सबनेट कौन सा होगा? सबनेट 1, यही है ना? Yeah. ठीक है। तो फिनांस यस डिपार्टमेंट के सर लिए 60 सिस्टम्स के लिए मुझे मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना चाहिए वैलिड होस्ट के? 60 चाहिए, राइट। मिनिमम 60 वैलिड होस्ट रिक्वायर्ड, दैट इज इक्वल टू 60। तो मुझे 60 के हिसाब से पावर लेना है अभी। तो कौन सा पावर ले रहे हैं? 2:6, टू द पावर राइट। 6 2:5 भी ले सकते थे, क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि ये, तो वो कम हो जाएगा सर। हाँ, ये रिक्वायरमेंट से कम हो रहा है, इसी वजह से नहीं ले रहे हैं। So 2:6, that is 64 minus 2, 62 valid host address. Now we can see that this is bigger than this, right? Always calculate, always compare it. Okay, compare करना हमेशा। अभी हम लोगों को कितना होस्ट बिट्स चाहिए? 6 होस्ट बिट्स में से, 6 सॉरी 8 होस्ट बिट्स में से 6 होस्ट बिट्स चाहिए। तो 6 वो 0 रहेंगे सर। जीरोस हम लोगों ने इधर पे डाल दिए, 1 2 3 4 5 6, और ये लास्ट के 2 बिट जो हैं ऑक्टेट के वो चले गए नेटवर्क पे। तो ये हो गया 128 और ये हो गया 64। ऐड कर देंगे तो आ जाएगा टोटल ओवरऑल वैल्यूज 192। ये 192 दिख रहा है 192। Yes. तो यस सर टोटल यस कितना सर हो गया? ये 8 8 8 24 वंस है प्लस 2 कितना आ गया? 26 26। अभी हम लोग नेटवर्क एड्रेस इधर से लिख लेते हैं, इधर पे 192.168.128 होता है वो प्लस होस्ट होता है। 26। पावर जो ले रहे हो ये तुम्हारा रिक्वायर्ड होस्ट बिट्स है। ओके, ये होस्ट मतलब बिट जो पावर हाँ, है। मतलब इतने नंबर ऑफ होस्ट बिट्स तुम्हें चाहिए तुम्हारे रिक्वायरमेंट के लिए। ओके, ओके अभी नेटवर्क एड्रेस जो निकला है 128, उसके साथ 1 ऐड करके हम लोग निकालते हैं फर्स्ट वैलिड होस्ट 129। अभी ब्लॉक साइज कैलकुलेशन क्या कहता है? जो भी सबनेट मास्क निकला है इस वाले ऑक्टेट से, उसको माइनस कर देंगे 256 से, जो कि फिक्स्ड है। तो कितना आ गया? 64। 64 ओके, अब इस 64 को जाके ऐड कर देंगे किधर पे? नेटवर्क एड्रेस के फोर्थ ऑक्टेट के साथ। तो आ गया तुम्हारा कितना? 100.192। नेक्स्ट सबनेट मतलब HR डिपार्टमेंट का नेटवर्क एड्रेस। ओके, तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है? -1 करना है 192 से, तो कितना आ गया? 191 191। और 191 से -1 कर देना है तो कितना आ गया? 190 लास्ट वैलिड होस्ट। अंडरस्टूड? Yes, sir. क्लियर? क्लियर है, राइट? ये दोनों एग्जांपल्स। Sir, network address, Yes. actually we have to add in plus one. Network That's address, first network address, it is given to you by the company. You will get it from the company. okay. Okay, so once you get it from the company, you will have to find your next subnet address. Okay, Okay. क्योंकि requirement you are having 4 requirements. For all the 4 requirements, you need separate network address. Okay. Okay, so that is what next subnet address we are using it for. Okay, Okay. whatever next subnet address we are getting in sales, the same next subnet address we are using it for finance. Yeah, So, that's Okay, correct. so For finance, last valid host में 190 कैसे ले आए हो? 190 फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस का जो फोर्थ ऑक्टेट होगा उससे -1 करना है।
तो फोर्थ ऑक्टेट ब्रॉडकास्ट एड्रेस का क्या है इधर 191 है, यस सर। तो 191 माइनस 1 कितना हुआ 190। 90। जैसे कि इधर पे कितना था 127, 127 माइनस 1 कितना हुआ 126। 126। ठीक है, यस सर। ऑलराइट। तो ये रहा तुम्हारे लास्ट के दो एग्जांपल्स। इन एग्जांपल्स को देखो और मुझे बताओ दैट इफ यू आर गेटिंग इट, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट। दिस इज फॉर एचआर डिपार्टमेंट एंड दैट इज फॉर मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ये जो स्टेप्स हैं फॉर्मूला से, देखो समझ पा रहे हो कि नहीं। सर इट्स लाइक कि फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस निकालने के बाद, हाँ बोलो। सर फर्स्ट नेटवर्क होस्ट एड्रेस निकालने के बाद सर सीधा हम नेक्स्ट सबनेट सबनेट एड्रेस निकालते हैं, नहीं, फिर उसी से ब्लॉक साइज ब्रॉडकास्ट, उसी निकालोगे, से लास्ट ब्लॉक वैलिड। साइज। हाँ सर, ब्लॉक हाँ साइज से। नहीं, फर्स्ट विलेट होस्ट निकालने के बाद ब्लॉक साइज निकालोगे, ब्लॉक साइज उसके बाद निकालते हैं। नेक्स्ट सबनेट हाँ, एड्रेस निकालोगे, ऐड करते हैं उसके उसमें, बाद फिर लास्ट उससे पे ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट निकल जाता एड्रेस है एंड -1, लास्ट विलेट होस्ट। फिर -1। यस सर। करेक्ट। गॉट। Anyone having any doubts in the subnet 2 requirement? सर इसमें क्या हुआ, सर हमारे यहाँ पे जो 30 है, 30 वैलिड होस्ट एड्रेस है ना, हम्म, तो हमारा ये 30 का हो 30 गया। विलेट होस्ट है। लास्ट बिट में हमारा 111 हो गया, इसका मतलब 32 हो गया है ना सर। नहीं, 224। अरे गुरु जी, टू टू ट्वेंटी ट्वेंटी फोर फोर हुआ ना, 3 वंस लास्ट है ना। वाला 32, लास्ट वाला 32 होगा ना। सर हाँ, वन क्वेश्चन मोर इज, हाँ, लास्ट 3 लास्ट इज वाला 32। लास्ट वाला 32 है तुम्हारा। ना, हम्म तो हम टोटल 256 में, ब्लॉक साइज 256 में 224 माइनस कर देंगे तो 32 आ जाएगा, है ना। यस करेक्ट। उसके बाद 224 में हमारा जो है ब्रॉडकास्ट एड्रेस हमारा -1 होता है। एग्जैक्टली। उसके बाद करेक्ट, नेक्स्ट सबनेट एड्रेस जो तुम्हारा एड्रेस आ रहे हैं 224, उससे -1 करना है तो 223 आ जाएगा। उसके बाद ब्रॉडकास्ट एड्रेस के जो लास्ट ऑक्टेट है 223, उससे -1 करोगे तो 222 आ जाएगा। लास्ट वैलिड होस्ट। इतने ही है ना सर। हाँ इतना ही है। तो अभी फर्स्ट तक वैलिड मतलब कि यही जो सर वाला था। पहली आईपी होगी सर वो 193 होगी, और जो सर लास्ट होगी वो 222, मतलब फिर इसमें जाके 20 करेक्ट। सिस्टम बैठेंगे। 222 में। करेक्ट। हाँ, नॉट 20 मतलब सिस्टम, ये मोर जो देन फर्स्ट दैट। विलेट होस्ट से लास्ट विलेट होस्ट के जो रेंज है ना, जैसे कि 193, 194, 195, 196, यस सर। ये ये तुम अपने मशीन्स पे दे सकते हो, आईपी एड्रेसेस टिल हम्म। 222 तक दे सकते हो। तो सर हमारे ठीक है। यहाँ, ये सर मेरे क्वेश्चन यहाँ पे, हम्म जो हमारा पहले तो हमारा आ रहा था 224 आ रहा था हमारा टोटल, तो हमारे यहाँ पे दो हमारा हम्म माइनस हो गया सर, 222 हो गया, तो इससे कोई इशू नहीं है क्या। इशू नहीं होगा क्योंकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम ले रहे हो ना। तुम्हारे पावर जो सिलेक्शन कर रहे हो तुम रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर रहे हो। अगर 20 सिस्टम्स के रिक्वायरमेंट है तो तुम 2:5 ही ले रहे हो, जिससे 30 वैलिड होस्ट। तुम्हें तुम्हें चाहिए कितना, 20 आईपीस चाहिए, लेकिन तुम्हें मिल रहा है कितना, 30 आईपीस मिल रहा है। अगर तुमने ऐसे टाइप के रिक्वायरमेंट तुम्हें मिला है कि
अभी फिलहाल तो 20 सिस्टम्स है, लेकिन अपकमिंग डेज पे तुम्हें और भी 20 सिस्टम्स को ऐड करना है फॉर एग्जांपल। तो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट कितना हो गया? 20 प्लस 20 40, है कि नहीं? हाँ, तो 40 के हिसाब से तुम्हें सबनेटिंग करना है अभी। ठीक है, तो ये टोटली रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड है। जो रिक्वायरमेंट मिलता है उसके ऊपर तुम्हें पावर सिलेक्शन करके सबनेटिंग करना है। ठीक है। जैसे हमारे थे तो सर हम मतलब ग्रेटर से लेके लोअर तक ही कर सकते हैं, मतलब पहले सेल्स का निकलेगा फिर उसके बाद नहीं, जैसे हाँ, सिस्टम कम होंगे, करेक्ट, मतलब कि एक। टू लोवेस्ट ही करना है। हाँ, यस टू लोएस्ट, मतलब कि ऐसा मार्केटिंग अगर हम नहीं है कि निकालना तुमने चाहें तो नहीं निकलेगा। सडनली ना निकाल सकते हो। लोअर रिक्वायरमेंट कर लिया, हम्म। हाँ निकाल सकते हो, क्योंकि पावर सिलेक्शन करके निकल रहे हैं, राइट? अच्छा। निकाल सकते हो। लेकिन इसमें तुम्हें प्रॉब्लम आ नेक्स्ट जाएगा। सबनेट क्यों? एड्रेस में। हाँ, नेक्स्ट सबनेट एड्रेस पे जब तुम ऐसे जाओगे, राइट, जैसे कि इधर पे मेरा /29 आया है यस सर। सबनेट मास्क कोर सिस्टम के लिए। मैंने एक बार /29 निकाल लिया तो मैं फिर से 29 से 25 नहीं जा सकता। तो इसीलिए तुम्हें हाईएस्ट, सर गॉट इट। हाँ, ऑलवेज मतलब मैंडेटरी है मैंडेटरी है ये, मतलब रूल्स हैं, रूल्स। सबनेटिंग करने का रूल्स हैं। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट नाउ। ठीक है। टेकन, ऑल ऑफ यू। हेलो सर। हाँ बोलो। तो सर कैसा कि जब आज हम पढ़ेंगे इसको फिर एक बार, हम्म। तो फिर सर के बाद डाउट हम्म। आता है, तो ऐसा कल पूछे तो चलेगा ना सर आपको? कोई दिक्कत नहीं, मतलब हर एक सेशन पे तो क्वेश्चनिंग आंसरिंग का तो एक टाइम रहता ही है, उस टाइम पे पूछ लेना डाउट्स। ठीक है सर, ठीक है। ऑल राइट, ये स्क्रीनशॉट ले लिया, राइट? यस सर। अभी नेक्स्ट लो, ये रिक्वायरमेंट का लो। सर। टेकन। यस सर। देन टेक द लास्ट वन। टेकन द स्क्रीनशॉट। ठीक है सर। ठीक है, तो अगर मैं अभी रिक्वायरमेंट एक देता हूँ, कर सकते हो? हाँ सर, कर देंगे सर, लेकिन पहले मुझे एक बार ऊपर वाला सिलेक्ट करके दिखाना सर। यस सर, ट्राई करेंगे सर। कौन सा? हाँ, वही ट्राई ट्राई करो, मुझे कोई समझ दिक्कत में नहीं। आता है, जब तक आप सर इन्हें दे दो सर, जब तक मैं समझ लूंगा, आप बता देना मुझे ऊपर वाला, जो सबसे ऊपर सेलेक्ट करना सर। सबसे ऊपर कौन सा? और ऊपर सर। यही है लास्ट। हाँ सर, ये वाला। हाँ, ये मतलब क्या? मेथड्स कौन ऑफ सा? प्रॉब्लम्स सबनेट। मेथड्स, ये वीएलएसएम मेथड है, इसी को यूज करके हम लोग कर रहे हैं ये सबनेटिंग जो कर रहे हो, राइट? ये वीएलएसएम, वीएलएसएम का मतलब होता है कि नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट जो होगा डिपार्टमेंट वाइज ये चेंज होता रहेगा, ये फिक्स नहीं रहेगा। ओके, जैसे कि इधर पे 100 है, इधर पे फिनांस है, ओके 60 का है, इधर पे 20 का है, इधर पे 4। ये रिक्वायरमेंट है जो वेरिएबल है। ओके, ये मेथड जो हम लोग यूज कर रहे हैं इधर पे, ये वीएलएसएम मेथड से सबनेटिंग कर रहे हैं। ओके, ये जो फॉर्मूलाज वगैरह हम लोग यूज कर रहे हैं इधर पे, ये सारे वीएलएसएम मेथड पे आते हैं। ओके, तो यही मेथड तुम्हें ऑर्गेनाइजेशंस पे जाके भी करना है। सबनेटिंग जब करोगे तो फिर यही मेथड को यूज करके करना है। ठीक है। एफएलएसएम क्या होता है? एफएलएसएम फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क, एफएलएसएम, इसका हाँ, तो मतलब है कि उसका तुम्हारा जो आईपी रिक्वायरमेंट एड्रेस जो रहेगा होगा फिक्स वो रहेगा। फिक्स्ड होना चाहिए। फिक्स्ड रहेगा मतलब सेम रिक्वायरमेंट होने चाहिए। अगर सेल्स पे 100 है तो फिनांस पे भी 100 होना चाहिए, एचआर पे भी 100 होना चाहिए, मार्केटिंग पे भी 100 होना चाहिए। रिक्वायरमेंट अगर फिक्स्ड रहता है तो फिर एफएलएसएम कर सकते हो, नहीं तो ओके। तुम्हें वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क ही करना है। ओके, तो ये रहे तुम्हारे क्वेश्चंस। ओके, सेल्स डिपार्टमेंट, you are having
56 systems. Finance department, you are having 9 systems. HR department, you have 25 systems. Technical department, you are having total of let's say 38 systems. And marketing department, you are having let's say 21 systems. And other department, you have 10 systems. Okay, ये तुम्हारे 6 requirements है. और नेटवर्क एड्रेस ये यूज कर सकते हो 190.150.0.0/24. ओके, याद रहे ये /24 है, मतलब 190.150 इतना तक नेटवर्क है और ये होस्ट है. ओके, अभी ये इन सारे डिपार्टमेंट्स के लिए तुम्हें नेटवर्क एड्रेस निकालने हैं, फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस निकालने हैं, लास्ट वैलिड होस्ट एड्रेस निकालने हैं, ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालने हैं, ब्लॉक साइज, नेक्स्ट सबनेट. ओके, टाइम में दे रहा हूँ 15 मिनट्स का, जितना हो सके कंप्लीट करो. ओके, डू एज मेनी नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स इन 15 मिनट्स यू आर हैविंग टाइम. ओके, सेम प्रोसेस है, सेम फॉर्मूला है. पहले रिक्वायरमेंट को हाईएस्ट टू लोवेस्ट ऑर्डर पे अरेंज करो, उसके बाद परफॉर्म सबनेटिंग. All right, so I'm muting myself. Whoever completes, simply just send me a message in the chat box.
All right, finished. विवांशु, ये सर 1 ही हुआ है सर, पता नहीं सर सही है या गलत है। अच्छा कौन सा रिक्वायरमेंट किया हो फर्स्ट? फर्स्ट वन सर, सर सेल्स। सेल्स वन। यस सर। सर नेटवर्क एड्रेस ठीक है। इज 190.150.0.0/24 एंड सर सबनेट स्लैश, मास्क इज 24। नहीं 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 नहीं, ये तो सर स्लैश नेटवर्क 24 एड्रेस है ना कैसे सर? होगा? सर नेटवर्क एड्रेस है ना ये? हाँ, नहीं नहीं, सेल्स डिपार्टमेंट का नेटवर्क एड्रेस क्या होगा? सर वन यही नाइन्टी होगा, डॉट वन सेम फिफ्टी एड्रेस डॉट का, जी लेकिन सबनेट हाँ सर मास्क सेम। जो है, सबनेट मार्क सर मैं बता रहा हूँ ना अभी सर। सबनेट मास्क। सर 255.255.255.192। करेक्ट। तो और सर स्लैश आ गया तुम्हारा 26 आया। 26 आ गया सर। और सर फर्स्ट वैलिड होस्ट है वन ठीक है, नाइन्टी डॉट वन फिफ्टी डॉट जीरो डॉट वन स्लैश 26। 0.1/26 फर्स्ट यस सर। विलेट होस्ट। यस सर। करेक्ट। इट्स एंड देन ब्लॉक साइज ब्लॉक इज साइज 64। 64। नेक्स्ट सबनेट एड्रेस। सर नेक्स्ट सबनेट एड्रेस इज 190.150.0.256/26। नहीं 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 नहीं, 256 कैसे हो गया? सर 64 है ना 192। तुम्हारा ब्लॉक साइज। हाँ सर 192 64 को प्लस जाके सिक्सटी ऐड फोर करना है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा। 64 को जाके जीरो, तुम्हारा नेटवर्क एड्रेस क्या है? फोर्थ ऑक्टेट पे जीरो है ना, यस सर। उस पे जाके ऐड करना है, तो 0.64 आएगा /26। अच्छा सर हमको ब्लॉक साइज कितना आएगा? ब्लॉक साइज 64, ब्लॉक 256 साइज। माइनस 192। -192। वो /26 है ना। यस हाँ यस। सर सर। ठीक है सर। सर पहले यही किया था मैंने सर, उसके बाद सर हाँ। थोड़ी मिस्टेक हो गई। फिर उसके बाद सर ब्रॉडकास्ट आ जाएगा वन नाइन्टी हम्म। डॉट वन फिफ्टी डॉट जीरो डॉट 63/26। करेक्ट। सर लास्ट वैलिड आ एंड जाएगा सर वन लास्ट। नाइन्टी डॉट वन फिफ्टी डॉट जीरो डॉट 62/26। करेक्ट, ये करेक्ट यस है। उसके बाद सर कौन सा इसमें। रिक्वायरमेंट है? अभी ये तुम्हारा नेटवर्क एड्रेस है 0.64। यस सर। तो इसके लिए कौन सा नेक्स्ट है? सर टेक्निकल टैग। डिपार्टमेंट 38 सिस्टम्स। यस सर। तो दैट इज योर नेटवर्क एड्रेस 190.150.0.64। यस सर। तो 38 के लिए क्या सबनेट मास्क आएगा? सर वही आएगा सेम, 255 डॉट सेम टू आएगा फिफ्टी फाइव। /26। हाँ सर। .192। हाँ, तो फर्स्ट वैलिड होस्ट कितना होगा? सर 65। 0.65 आएगा। यस सर। ब्लॉक साइज सेम आएगा 64। यस सर। सर ब्रॉडकास्ट आएगा सर 63। राइट, नहीं, 64 है तुम्हारा ब्लॉक साइज, मतलब 64 + 64 कितना 63। हो गया? यस सर 128। यस सर गॉट इट। 128। तो 0.128 आया और फिर लास्ट आएगा स्लैश 127। 26। नेक्स्ट सबनेट एड्रेस है। हम्म। हाँ, तो 0.127 आ जाएगा तुम्हारा ब्रॉडकास्ट, एंड यस जीरो सर। डॉट 126 आ गया तुम्हारा लास्ट लास्ट विलेज वाली। होस्ट। यस सर। ये हो गया तुम्हारे 38 सर ये सिस्टम्स के आप लिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट का कर रहे हैं? टैग का। टेक्निकल का, टेक्निकल, टेक्निकल टेक्निकल के डिपार्टमेंट। 38 सिस्टम्स के लिए कर रहे हैं। ओके। तो नेटवर्क, 21, 85, 21, 9, 10, 6, आई एम नॉट गेटिंग यू आकांक्षा। सर हाँ रुको, तुम्हारा आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रहा है, जस्ट 1 मिनट रुक जाओ, जस्ट होल्ड ऑन फॉर 1 मिनट। यस, कैन यू हियर मी प्रॉपरली?
All right. हाँ तो आकांक्षा, yes, what exactly you were asking? Sir, you could see equivalent another 50 to 36, 25, 21, 10, 9. फिर भी your voice is not clear, Akanksha. Just do one thing. Uh, type your question. Type your question in the chat box. अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स पे भेजो. ऑल राइट, 38 सिस्टम्स के लिए हो चुका, राइट? सर जस्ट 1 सबमिटिंग. मिनट तो हम लोगों का हाँ सर, सेल्स डिपार्टमेंट में 56 150. सिस्टम्स के लिए हम्म हम्म 56 सिस्टम्स के लिए तो सर मैं जो हम लेंगे तो 2 की पावर 6 लेंगे, यानी कि 64 होना चाहिए ना सर? हाँ ठीक है तो है. -2 then टूरिस्ट हाँ -2 6 होगा। ही तो ले रही हो, हाँ ठीक है, राइट? 62 आ जाएगा. ओके. सो /26 आ रहा है ना हाँ टोटल? सर एक बार बताओगे /26 कैसा है, कंफ्यूजन हो रही है. सर /26 ही तो आ रहे हैं Yes, sir. 56 सिस्टम्स के टू द लिए. पावर 6. टेक टेक और टेक सेम तुम्हारे डिपार्टमेंट 38 के लिए भी सेम आ रहे हैं. यस सर सर. टेक डिपार्टमेंट के लिए 26 बता रहे हो ना आप? टेक्निकल पे भी सेम आ रहे हैं और सेल्स पे भी सेम आएंगे. सर सेल्स वाला थोड़ा सर, दोबारा मैं अपनी सर स्क्रीन क्या शेयर सर करूँ, आप 26 एक बार देख के बताओ कहाँ पे 20 मिस्टेक करी मैंने. एक काम करो, जो भी मिस्टेक किए हो, जो अगर सबमिटिंग कैलकुलेशन किए हो तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजो. तो स्क्रीनशॉट देख के मैं बता दूंगा किधर पे दिक्कत है. ठीक है. सर एक बार आप 26 बता दो, एक बार आप लिख के. ये देखो, ये तुम्हारा सबसे पहला क्या है, सेल्स का है, राइट? 56 सिस्टम चाहिए, मतलब हम लोग क्या ले रहे हैं, 2:6. 64 आ रहा है, -2 करने से कितना आता है? 62. 62. वेरी होस्ट, राइट? तो हम लोगों को कितना चाहिए? 6 चाहिए होस्ट बिट्स, राइट? 6 होस्ट बिट्स चाहिए. तो 6 होस्ट बिट्स हम लोगों ने ले लिया इधर पे. 1 2 3 4 5 6. और ये लास्ट के 2 बिट चले गए किधर पे? नेटवर्क पे. तो ये क्या हो गया? ये ओके 128 आ ओके गया, ओके, गॉट इट. ये 64. तो ये आ गया 192. ठीक है. तो हम लोगों का पूरा सबनेट मास्क कितना क्या निकला? 255.255.255.192. यही है सबनेट मास्क, ये वाला ऑक्टेट. ठीक है. तो कितने वंस हो गए अभी? ये 255 के 8 वंस हैं, ये 255 के 8 26 वंस हैं, ये 255 के 8 वंस हैं, 26. और इधर पे 2 वंस हैं, 2 वंस. तो 26 ओके. /26. ठीक है. अभी तुम्हारा नेटवर्क एड्रेस तुमने लिख लिया, 190.150.0.0 स्लैश आ गया कितना? 26, राइट? देन तुम्हारा फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस क्या आ गया? 190.150.0.1, 1. राइट? तो ये आ गया तुम्हारा फर्स्ट वैलिड होस्ट. ब्लॉक साइज 256 से सबनेट मास्क कितना निकला था? -192. 255 255 255.192. 192. यही निकला. तो 192 को माइनस करो, कितना आएगा? 64. 64. तो ये 64 को जाके हम लोगों ने ऐड कर दिया किधर पे? फोर्थ 0 पे. ऑक्टेट. 4. तो कितना आ गया? ये आ गया तुम्हारा 64/26. 0.64./26. अभी -1 करो 64 से, तो कितना आ गया? 63. 0.63. ये हो गया तुम्हारा ब्रॉडकास्ट. और 63 से -1 करोगे तो कितना आएगा? 62. 62. 0.62. So that is your last village host address. सर हम सर यहाँ पे तो नेटवर्क एड्रेस में आप 24 दिए थे ना? तो सर यहाँ तो 25 होगा, तो आप
26 किया है। 25 क्यों होगा? तुम कितना पावर ले रहे हो 56 के लिए? हाँ 2:6 ले रहे हो, राइट? हाँ हाँ सर, तो 64 माइनस हाँ, 2। तो 2:6 लेने से, हाँ, 2:6 लेने से हम लोगों को कितना होस्ट बिट्स चाहिए? हम लोगों के पास कितना होस्ट बिट्स है? 8 होस्ट बिट्स है, राइट? क्लास सी पे। सो 8 होस्ट बिट्स में से हम लोगों को चाहिए 6 होस्ट बिट्स। तो 8 - 2 कितना? 8 - 6 कितना आता है? 2। ये 2 नेटवर्क बिट्स हो गए, राइट? ओके ये सुनना, ये 2 नेटवर्क बिट्स। यस सर। अभी 2 नेटवर्क बिट हम लोगों को फोर्थ ऑक्टेट से मिल रहा है, और पहले से ही तो 24 नेटवर्क बिट्स हैं हम लोगों के पास। तो 24 + 2 कितना हो गया? 26। ये सुनना, सर और ये यस सर। 190.150 कैसे है? ये तो मैंने दिया हुआ है ना इधर पे, ये तो दिया है इधर, ओके सर। ये नेटवर्क एड्रेस आपने देके दिया है ना। सर आपने जो ये वाला दिया उसके बाद नीचे उसके नीचे वाले आपने नेटवर्क एड्रेस में आपने वो डाला था सर 190.150.0.1। हम्म। 190। हाँ, तो वो तो तुम्हारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला यूज करके डालना है, राइट? सर फार्मूला एक बार सेंड कर दोगे तुम्हें सर? फॉर्मूला इधर पे, हम लोगों ने ये जो एग्जांपल्स है ये समझे हो ठीक तरीके से? यस ये जो सर। एग्जांपल्स मैंने हम लोगों ने किए, ये यस सर। समझे हो, राइट? इधर पे 100.1 कैसे आया? इधर पे 100.1 कैसे आया? +1 करके। अगर ये एक, हाँ, +1 करके फोर्थ ऑक्टेट फोर्थ पे ऑक्टेट। +1 किया। नेटवर्क एड्रेस के 0 है, तो 0 + 1 कितना आएगा? 1। 1। फर्स्ट विलेट होस्ट। और ये वाला प्लस हुआ और ये वाला फिर ये तुम्हारा नेक्स्ट सबनेट एड्रेस कैसे आया? ये नेक्स्ट सबनेट एड्रेस ब्लॉक साइज से आया। ब्लॉक साइज को 128 है, इसको 0 के साथ ऐड किया तो ये 128 आया। 228 फिर ये 127 कैसे आया? 128 से माइनस -1 वन किया करेंगे तो तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस 127 आया। है। और ये 126 कैसे आया? 127 से माइनस -1 किया तो 126। 126 आया। बस सेम प्रोसेस है। सर एक डाउट है सर। हाँ, बोलो। एक डाउट है, जैसे आपने अभी दिया था 190 डॉट आ गया 190 डॉट 150। 150 डॉट 0.0 है ना? तो हम्म, और इसका हम्म, दूसरा वाला करना सर, अभी जो अभी शो कर रहे थे आप, अभी जो हम्म। आप शो कर रहे थे ये तो, ये वाला। सेल्स। एग्जाम्पल। सेल्स। एग्जाम्पल, हाँ ये सर इसमें हमारा जो है 192.168.100.126 तो हम्म। हम ये समझ रहे हैं। लेकिन हमारा जो मतलब आप जो एड्रेस देते हो सर उसको सेम रखना होता है, बस लास्ट का जो डिजिट होता है उसको एडिट करना होता है ना सर? लास्ट क्लास वाला सी कॉलम का सर। नेटवर्क है, राइट? तो क्लास सी ओनली। के तुम्हारे जो फोर्थ ऑक्टेट हैं वो ही चेंज होते हैं हमेशा। ओके, ये एड्रेस कौन सा भी हो सकता है। ये मैंने तो 192.160 दिया है, ये कौन सा भी एड्रेस हो सकते हैं। लेकिन तुम्हें फोकस करना है सबनेट मास्क पे। तुम्हारा सबनेट मास्क क्या कहता है? /24 है। /24 मतलब 192.168.100 ये नेटवर्क है तुम्हारे। और ये 0 जो है ये होस्ट है। तुम्हें जो सबनेटिंग करना है वो फोर्थ वाले ऑक्टेट पे करना है, इस वाले ऑक्टेट पे। छेड़ना नहीं है। इसी वजह से देखो फोर्थ वाला ऑक्टेट जो है वो चेंज हो रहा हाँ, सर। है। ओके, और बाकी छेड़ना फोर्थ नहीं है ना वाला जो सर? ऑक्टेट है यस वो सर। चेंज हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ सर, बाकी को छेड़ना बाकी नहीं है तो ना? सेम ही है। नहीं, 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 बाकी पे कुछ नहीं करना है, क्योंकि बाकी ये 3 ऑक्टेट पॉइंट नेटवर्क को क्लियर है, नहीं था राइट? सर मुझे। यही 192.168.100 नेटवर्क है। सबमिट मार्क्स में सर कंफ्यूजन हो। सर ये क्लास बी और क्लास ए में भी सेम होता है? सेम प्रोसेस है। ओके सर, ये वाला मुझे ओके। क्लियर नहीं था सर, लास्ट जो 3 डिजिट है ना उसको, 3 बिट है उसको छेड़ना नहीं है ना? हम्म। वो क्लियर नहीं था, अब क्लियर है सर। ठीक है, 38 सिस्टम्स का कर लिया, उसके बाद तुम्हारे कितना है? 25। तो इधर पे हम लोगों का कितना नेटवर्क एड्रेस आ रहा था? 126। 190.150.128, राइट?
तो ये नेटवर्क एड्रेस आ रहा था इस वाले नेक्स्ट सबनेट पे। तो 25 सिस्टम्स के लिए कौन सा पावर लेंगे? 2 to 5, 5 32 minus 2, 32, 30. So 5 host bits we need. It means 3 bits are going to the network, right? यस सर। है कि नहीं? 8 होस्ट बिट्स में से 5 होस्ट बिट्स रख रहे हो, मतलब 3 बिट्स चला गया नेटवर्क पे। तो 24 तो पहले से ही है। 3 bits 24 plus 3 कितना हो गया? Plus 27. Okay. Then our first valid host address is 0.129/27. ब्लॉक साइज कितना आएगा? 256 माइनस 3 होस्ट बिट्स, मतलब 3 नेटवर्क बिट्स, राइट? 3 ones, 224 3 ones and remaining zeros, right? So that is your 224. That is your 32. So 32 plus 128 is how much? Next subnet address 0.160. 160। Okay, 160 आ रहा है सर एक डाउट है /27. तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा? सर 159 159/27, right? And last valid host क्या आएगा? 0.58/27. ये हो गया तुम्हारे 25 सिस्टम्स के लिए। ठीक है, तो एक काम करो, ये पूरा करके मुझे कल दिखाओ, ठीक है? हेलो ये यस, टेल मी। सर इसका जो कैलकुलेशन है सर, पहले हमें निकालना होता है नेटवर्क एड्रेस, उसके बाद हमारा होता है ब्लॉक valid host. ऐसे ही है ना सर? नेटवर्क एड्रेस निकालना है पहले, फिर फर्स्ट विलेज होस्ट निकालना है, फिर ब्लॉक साइज निकालने हैं, फिर नेक्स्ट सबनेट एड्रेस निकालना है, फिर ब्रॉडकास्ट एड्रेस और लास्ट पे लास्ट विलेज होस्ट एड्रेस। सर मुझे एक बार फिर से नेक्स्ट सबनेट एड्रेस समझाइएगा। नेक्स्ट सबनेट एड्रेस ब्लॉक साइज को ऐड करके किया जाता है। जो ब्लॉक साइज तुम्हें मिलता है उस ब्लॉक साइज को 4 के साथ ऐड करते हो, इससे नेक्स्ट सबनेट एड्रेस निकलता है। ब्लॉक साइज को हम ऐड करते हैं किसमें? ब्रॉडकास्ट एड्रेस में? नेटवर्क एड्रेस के साथ ऐड करना है 4th ऑक्टेट। नेटवर्क एड्रेस, ओके। सर सर जो नेटवर्क एड्रेस गिवन होता है सर वो सेम ही होता है, बस उसमें सर जो लास्ट की CIDR होता है वो चेंज होता है बस। CIDR तो चेंज होंगे। हाँ सर, ओके, इन तुम्हारा नेटवर्क जो एड्रेस। सबनेट मास्क है वो, हाँ, और नेटवर्क एड्रेस पे जो तुम्हारा नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स होंगे वो सेम रहेंगे हाँ सारे जगह पे, सर और सेम है। ये जो सर हमारा जो ओके, ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है वो हमारा डिपेंड होता है ब्लॉक साइज पे या सबनेट एड्रेस पे? नेक्स्ट सबनेट एड्रेस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट सबनेट एड्रेस क्या है? उससे माइनस होता है। ओके ठीक है, ऑल राइट। अभी क्लास बी के सबनेटिंग देखते हैं। क्लास बी, ये स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी तरीके से, ये मुझे कर करके दिखाओ। ओके टेकन द स्क्रीनशॉट ऑल ऑफ यू। टेकन सर। सर इसमें सेल्स डिपार्टमेंट के बाद जिसके पास उससे कम सिस्टम होंगे उसको लेंगे या फाइनेंस को भी ले सकते हैं? देखो ये तो ये तो मैंने ये तो मैंने पहले ही बताए हैं। रिक्वायरमेंट तुम्हारा क्या है? 56 9 25 38 21 10, ये सारे रिक्वायरमेंट है, राइट? हाँ। तो रिक्वायरमेंट जब तुम्हें मिलता है तो तुम्हें क्या करना है? सबसे पहला काम क्या होता है? Just ग्रे ग्रे अरेंज करना greatest होता to है ना? smaller, arrange to greatest to smallest. अरेंज करना है तुम्हें, और कैसे अरेंज करना है? हाईएस्ट टू लोएस्ट। टू लोवेस्ट, Highest to lowest. हाईएस्ट टू लोवेस्ट पे अरेंज करना है।
ओके उसके बाद तुम्हें सबनेटिंग करना है। गॉट इट अंडरस्टूड? यस थैंक यू ऑलराइट। तो क्लास बी के सबनेटिंग जो है उस पे रिक्वायरमेंट तुम्हारे ज्यादा है। ओके, रिक्वायरमेंट जैसे कि रिक्वायरमेंट अभी जो है ये 25,000 सिस्टम्स, हेलो सर 6,900 हमारा systems, क्या 3,500 systems, okay, 300 systems, ये ज्यादा रिक्वायरमेंट है। okay, so in class C we get maximum how many will it host addresses using /24? कितना मिलता है मैक्सिमम? 256 /24, that is 254 will it host address, right? okay yes sir 2 254 will it host मिलता है, मतलब 254 machines को हम लोग आईपी दे सकते हैं using class C default subnet mask। लेकिन अगर मेरा रिक्वायरमेंट इस 254 से ज्यादा हो जाए, ओके, if our requirement exceeds 254 then we cannot perform subnetting using class C। जैसे कि ये 300 है, ये 6,900 है, ये 3,500 है, ये 25,000, ये रिक्वायरमेंट के लिए तुम क्लास सी यूज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज क्रॉसिंग दिस 254 बाउंड्री। दैट इज व्हेन यू डू क्लास बी सबनेटिंग। ओके, तो नेटवर्क एड्रेस कंपनी ने तुम्हें प्रोवाइड किया है, ये /16 है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.0.0। ये दो हम लोगों के नेटवर्क ऑक्टेट हैं और ये हैं होस्ट ऑक्टेट। तो टोटल होस्ट बिट्स अभी हम लोगों के कितने हो गए? 16, राइट? 16 होस्ट बिट्स हैं। और हम लोगों के जो होस्ट ऑक्टेट हैं ये कौन से ऑक्टेट पे स्टार्ट हो रहा है? थर्ड वाला, राइट? इधर से हम लोगों के होस्ट ऑक्टेट स्टार्टिंग, राइट? यस सर होस्ट बिट्स स्टार्टिंग, ओके। तो सेम कैलकुलेशन अभी हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो सबनेट नंबर 0 है, ये सबनेट नंबर 0 पे सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है? 25,000। तो 2:15 ले रहे हैं, 32768 -2 32766 वैलिड होस्ट। 15 होस्ट बिट्स चाहिए तुम्हें, टोटल तुम्हारे पास 16 होस्ट बिट्स हैं, उनमें से 15 चाहिए। तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हो गए तुम्हारे 15 जीरोस। और लास्ट वाला जो है, ये वाला जो है, ये क्या हो गया? नेटवर्क 1। तो इसका वैल्यू क्या है? 128 है, 20 right? So that is why you are seeing 128 in the third octet and last octet is 0। ठीक है, अभी तुम्हारा नेटवर्क एड्रेस जो भी है उसको लिख लेना है। फर्स्ट विलेज होस्ट फॉर्मूला इज सेम, दैट इज लास्ट octet +1, that is 0.1 /17 कैसे आया? टोटल 16 है प्लस ये 1, टोटल 17 आया। अभी ब्लॉक साइज निकालने के लिए सेम फॉर्मूला, 256 को 256 से तुम्हारा सबनेट मास्क को माइनस करना है। तो ये 256 से 128 माइनस करते हो तो 128 आएगा। अभी इस 128 को हम लोगों को किधर पे ऐड करना है? नॉर्मली इन क्लास सी सबनेटिंग वी एड इट इनटू द फोर्थ ऑक्टेट, राइट? यस और नो? यस सर इधर पे ऐड कर रहे थे, बट फोर्थ क्यों ऐड कर ऑक्टेट रहे थे फोर्थ ऑक्टेट पे? क्योंकि क्लास सी पे फोर्थ ऑक्टेट हम लोगों का होस्ट ऑक्टेट है, राइट? यस और नो? बट क्लास बी पे हम लोगों के होस्ट ऑक्टेट थर्ड वाले से स्टार्ट हो रहा है, राइट? और फोर्थ ऑक्टेट पे जा रहा है। इस वजह से इसको जाके किधर पे ऐड करेंगे? थर्ड थर्ड वाले पे। तो थर्ड वाले पे ऐड करते हो तो कितना आ गया? 128.0। ठीक है, तो ये नेक्स्ट सबनेट एड्रेस जब निकल गया तो हम लोगों को ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालने के लिए थर्ड वाले से -1 करना है, फोर्थ वाले से -1 करना है। तो 120 -1 कितना हुआ? 127। 127 और 0 से -1 करते हो तो कितना आएगा?
माइनस 255। अभी -1 तो ऑक्टेट पे तो नहीं लिख सकते, है कि नहीं? ऑक्टेट पे तुम डेसिमल लिख सकते हो, लेकिन -1 निगेटिव या दूसरे कोई भी सिंबल्स तुम डाल नहीं सकते ऑक्टेट पे। तो इधर पे हम लोगों को क्या करना है, जो प्रीवियस वैल्यू है ऑक्टेट पे, इन एन ऑक्टेट 0 होता है क्या, मिनिमम वैल्यू, करेक्ट? इन एन ऑक्टेट वी हैव 0 इज द मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 255, आधा खून चूस के right? 255 is the maximum value. Okay. So when we say 0 minus 1, we're talking about the maximum value in an octet, which is 255. Okay. तो जब भी तुम्हें इधर पे 0 तुम्हें दिखाई पड़े, -1 करने से तुम्हें 255 ही तुम्हें लिखना है। ओके, you will have to subtract -1 from 0, it will ultimately come as 255, the maximum value. मतलब ये अगर मिनिमम वैल्यू है तो इसका प्रीवियस जो वैल्यू होगा वो तो मैक्सिमम ही होगा, है कि नहीं? यस यस सर, यस सर। इसी को इधर पे डालना है, ठीक है? तो एक बार ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकल गया तो सेम प्रोसेस, लास्ट विल होस्ट फॉर्मूला -1 ऑफ ब्रॉडकास्ट, लास्ट ऑक्टेट 255 -1 इज व्हाट? 254. ओके, दैट इज द सेम प्रोसेस। तो यही प्रोसेस से हम लोग सेकंड वाला रिक्वायरमेंट भी कर रहे हैं, दैट इज मार्केटिंग डिपार्टमेंट, 6,900 systems. For 6,900 systems, which power we are taking? कौन सा पावर ले रहे हैं? टू द पावर 13। 2 raised to 13. That is 8192. -2 is 8190. मतलब टोटल 16 होस्ट बिट्स में से अभी हम लोगों को कितना चाहिए? 13, करेक्ट? यस सर। इस रिक्वायरमेंट के लिए कितना चाहिए तुम्हें? 13 चाहिए। तो 16 से 13 को अगर माइनस कर देते हो तो बचता कितना? 3, राइट? 3। ये 3 तुम्हारे किधर पे चले गए? ये दिख रहा है 3 नेटवर्क 3 वंस, ये नेटवर्क बिट्स हो गए, राइट? यस सर ये सुन लो, यस सर। तो 3 तुम्हारे नेटवर्क बिट्स हो गए, इसका मतलब क्या है? इसका वैल्यू क्या आएगा? 224। 224। और लास्ट वाला तो 0 ही है, तो इसका वैल्यू 0 ही आएगा। तो ये 3 प्लस ये 16 कितने हो गए तुम्हारे टोटल नेटवर्क बिट्स? 19। ठीक है, अभी तुम्हारा नेटवर्क एड्रेस को डाल दो तुम इधर पे। अभी फर्स्ट वैलिड होस्ट निकालने का फॉर्मूला सेम है, +1, 0 + 1 is 1. Then you have to calculate the block size. तो ब्लॉक साइज सबनेट मास्क कितना निकला है 256 थर्ड वाला ऑक्टेट से? 224। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 256 से, 32 तो आ गया तुम्हारा 32। Then you need to add this 32 in which octet? फर्स्ट थर्ड वन। Third octet. So 120 plus 32, that is how much? 159, 160, 159, 160 160.0। अभी 160.0 से -1 करो तो 159। कितना आएगा? 159। 0 - 1 is what? 255। 255। ठीक है, अभी ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकल गया 255, मतलब -1 करके कितना निकालना है? लास्ट विल इट होस्ट। अंडरस्टूड? yes Yes, sir. Yes, sir. The difference here, did you guys get it? What is the difference? यस सर। we are working on third सर जो क्लास सी में होता है last सर, वो octet. फोर्थ ऑक्टेट में करते हैं, इसमें थर्ड ऑक्टेट में। करेक्ट। ब्लॉक साइज को तुम्हें थर्ड वाले ऑक्टेट पे ऐड करना है। ओके, इसका पूरा स्क्रीनशॉट लो, इस रिक्वायरमेंट का स्क्रीनशॉट लो, ये करके मुझे दिखाओ कल। Okay, sir. ठीक है, यस सर।
Yes, sir, taken. अभी इसका लो। Yes, sir, taken. taken. 3500 के लिए भी मैंने किया हुआ है इधर पे। ओके Taken. ठीक है, ये 3500 तक मैंने किया हुआ है, बाकी के भी किए हुए हैं, लेकिन तुम्हें बाकी के करके मुझे दिखाने हैं। ओके सर सो एक मिनट, वो सर सब नेटिंग वाला स्क्रीनशॉट ले लेते सर वो हुआ नहीं सर। कौन सा इसका? हाँ सर, स्टार्टिंग से सर। यस सर, ये टेकन। सर टेकन सर। अभी नेक्स्ट लो। टेकन सर। टेकन। टेकन। अभी ये नेक्स्ट लो, ये लास्ट है। सर वैलिड टेकन होस्ट राइट। एड्रेस यस का सर। क्या रोल है सर? वैलिड होस्ट एड्रेस क्या रोल है सर? क्योंकि मतलब यहाँ कौन सा? पे, हाँ जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने निकाला Address. मुझे 20 सिस्टम की जरूरत है, तो मैंने यहाँ पे 32 लिया, तो 30 आया मेरा वैलिड होस्ट एड्रेस। ठीक है, ठीक हाँ है, 20 तो, सिस्टम्स के लिए तो ठीक ही है कैलकुलेशन। हाँ ठीक है, तो 30 वैलिड होस्ट एड्रेस आया। तो इसका इसमें क्या रोल है सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि 30 का यूज हमने यहाँ पे किसी चीज में नहीं किया। नेटवर्क एड्रेस, फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस, लास्ट वैलिड होस्ट एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ब्लॉक साइज, नेक्स्ट सबनेट एड्रेस, नहीं नहीं कहीं पे नहीं, नहीं ऐसा यूज किया नहीं है, इसका। ये देखो, जैसे कि इधर पे, ओके इधर पे 30 आ रहा है राइट। राइट। ये 30 जो है, ये टोटल 30 आईपीस मिल रहा है तुम्हें। 30 आईपीस ओके। जो तुम अपने पीसी पे दे सकते हो, लैपटॉप पे दे सकते हो, सर्वर्स पे दे सकते हो। ओके, अपने राउटर्स पे दे सकते हो, मतलब जो जो नेटवर्क्स हैं, नेटवर्क मशीन्स है तुम्हारे पास, वो सारे मशीन्स पे तुम ये सारे टोटल 30 आईपीस दे सकते हो। अब ये 30 आईपीस किधर किधर से आ रहा है? ये देख रहे हो 193 से 222 दिख रहा है। फर्स्ट विलेज से लास्ट विलेज होस्ट तुम्हारा रेंज क्या है? 100.193 से लेके 100.222 तक कितने आईपीस होते हैं टोटल? यस, 30 इतने ही तो होते हैं, यस। है कि नहीं? यही है, यही 30 आईपीस इधर पे तुमने डिफाइन किया है 193 से 222 तक। ओके, तो मैं अगर, ये तुम्हारे जो जो ये इधर पे तुम्हें जितने भी आईपीस मिल रहे हैं राइट 30, वो 30 आईपीस कौन कौन से हैं? ये फर्स्ट विलेज से लास्ट विलेज होस्ट इधर पे डिफाइंड है। 193 से लेके 222 तक तुम्हें 30 आईपीस मिलते हैं टोटल। करेक्ट। कौन सा भी आईपी यूज करो उसके बीच में 193 से लेके 222 तक कौन सा भी आईपी यूज कर सकते हो अपने मशीन पे। फर्स्ट वाला सर ऐसे किसी यूज का नहीं होता, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट विलेज होस्ट या लास्ट विलेज होस्ट, मतलब ये जो एड्रेसेस हैं इनको हम लोग कहते हैं वैलिड होस्ट एड्रेसेस। तुम कौन सा भी आईपी यूज कर सकते हो, फर्स्ट विलेज होस्ट के एड्रेस को भी यूज कर सकते हो, लास्ट विलेज होस्ट के एड्रेस को भी यूज कर सकते हो। मतलब इनके मैं बीच में जितने भी, सिस्टम को हाँ असाइन कर सकता हूँ फर्स्ट एंड लास्ट आईपी एड्रेस। करेक्ट, ओके। करेक्ट, मतलब इनके बीच का जितने भी रेंजेस हैं, जितने भी आईपीस आ रहे हैं, जैसे कि 194, 195, 196, 200, ओके, जितने भी आईपीस हैं टिल 222 तक वो कौन सब सा भी असाइन आईपी हो। अपने मशीन पर दे सकते हो। ठीक है सर। ठीक है, ऑलराइट, तो ये तुम लोगों को करके लाना है। ओके, इन द नेक्स्ट सेशन मेक sure that you complete this requirement, and from next session onwards we are starting our practical projects. Okay, practical project करने वाले हैं। Yes, sir. तो ये सारे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स करने के लिए ये कैलकुलेशंस, ये सबनेटिंग, सबनेट मास्क, सीआईडीआर अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए।
This is our concept, what we are going to discuss. That is your inter-network operating system. Okay, sir. Inter-network operating system. And what I want all of you to log in with your machine from next session onwards. Okay. सर वन कंफ्यूजन अपने सिस्टम से लॉगिन लेना है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन से अपने लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी मशीन से उनसे लॉगिन लेना है, क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। यू विल बी डूइंग प्रोजेक्ट्स विद मी। सर पैकेट ट्रैक कर ओके सर। ये डाउनलोड कर लेना है क्या? वो कौन सा नहीं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है वो बेसिकली मैं बताऊंगा नेक्स्ट सेशन पे। ओके। ओके अपने ओके सर सिस्टम से लॉगिन लेना। ओके ओके सर ऑलराइट। ओके सर And if any confusion is there in the subnetting, let me know in the next session. ओके सर। हेलो सर। ठीक है। कुछ ओएस का VMware पे करेंगे ना बेसिकली, तो ठीक है। So do all the things what we have discussed today properly हेलो and सर। do the subnetting questions. ठीक है, हाँ बोलो। सर एक मिनट। बेसिकली वी आर डूइंग इट ऑन VMware ना? सर एक क्वेश्चन है We're doing it using packet tracer software, but the version what we are going to be using, I will share it in the next session. Okay. We're not using the latest version. So just log in with your system from tomorrow. सर एक मिनट सबसे बात करनी स्पेसिफिक कोई ऐसे सिस्टम का रिक्वायरमेंट नहीं है ना, मतलब ओएस का? नहीं, कौन से भी सिस्टम से कौन से भी कॉन्फ़िगरेशन पे रन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बताओ। It will not be a problem. Simply just uh, log in with your system tomorrow. I will tell you what exactly you need to do. Okay. ओके सर। Yes, ओके सर। Bhagyashree. हाँ सर एक मिनट सबसे बात करनी थी। इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, शायद वो लिंक आपको भेज के आप चैट बॉक्स में भेजिए ना। तुम्हें तुम्हारे रिक्रूटर से बात करना पड़ेगा उसके लिए। अगर व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहती हो, फर्स्ट यू कंसल्ट विथ योर रिक्रूटर। सर आई थिंक उसके व्हाट्सएप बाद ग्रुप इज अगर नॉट अलाउड। हाँ, so सर if they are giving you the permission, then only you can create it. Okay. If they are not giving you the permission, it is against the rules. So just discuss with your recruiter directly. जो भी तुम्हारे HR हैं उनसे डायरेक्टली बात करो। अगर वो अलाउ करते हैं, then you can create it. Okay. ओके। वन कंफ्यूजन हेलो All right, everyone. So yes, tell me. जो लास्ट में आपने बताया सर, आपने होस्ट वहां पे होस्ट से लिया, और फर्स्ट में आपने जब बताया था सर आपने नेटवर्क से लिया था। जो वैल्यू आप लास्ट वाली लेते जैसे 16 आप ले रहे थे सर, तो उसमें आप बता रहे थे कि हम 8 से उसको माइनस करें, जो माइनस करेंगे उसके बाद उसको होस्ट लेंगे सर। बेसिकली ही इज टॉकिंग मतलब अबाउट कौन सा ऑक्टेट्स। लास्ट में आपने बताया सर ऑक्टेट्स, ये होस्ट होस्ट। होस्ट यस सर। हाँ, इसमें आपने इधर पे तुम्हारा होस्ट से डिफॉल्ट। लिया था। जी सर। 16, जैसे कि 16 है ना तुम्हारा, 16 होस्ट बिट्स हैं, राइट। यस सर। 16 में से हम लोगों को कितना चाहिए? 15, राइट। तो 15 को अगर मैंने माइनस कर दिया तो कितना बचता है? 1, जो कि तुम्हारा नेटवर्क बिट हो जाता है। यस। यस है कि नहीं? ये सिंपल सा फॉर्मूला है, शॉर्टकट है, इसको भी यूज कर नहीं, सकते हो स्टार्टिंग ऐसे। स्टार्टिंग में सर आप अगर नेटवर्क तुम्हें से बताया। हम्म स्टार्टिंग में सर आप बता रहे थे नेटवर्क नहीं, नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क एड्रेस बताया? नेटवर्क एड्रेस तो दिया हुआ है ना ऑलरेडी। यस सर। 180.165.0.0 ये तो एड्रेस दिया हुआ है। इसी एड्रेस को तुम्हें लिख लेना है डायरेक्टली। ओके। उसके बाद तुम्हें जो फॉर्मूला यूज करना है फास्ट वॉलेट होस्ट के लिए या ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालने के लिए, वो सेम फॉर्मूला यूज करके निकाल लेना है। फर्स्ट नेटवर्क एड्रेस ऑलवेज इज गिवन बाय द कंपनी। यस सर। ओके। ओके सर। और फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस हमेशा तुम्हें +1 करके निकालना है। जो भी नेटवर्क एड्रेस होगा उसके साथ +1 करो, देन ओनली यू विल गेट द फर्स्ट वैलिड होस्ट। ओके, फॉर्मूला है। ऑल राइट, सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू गुड सर। नाइट थैंक यू। एवरीवन। कोई व्हाट्सएप ग्रुप वो मतलब किसके पास कांटेक्ट करना पड़ेगा?
जस्ट कंसल्ट विद योर रिक्रूटर, अपने जो एचआर हैं उनसे बात करो, अगर वो ओके अलाउ सर, करते हैं यू कैन क्रिएट योर ग्रुप्स। ठीक है, ओके सर, ऑल राइट, थैंक यू। ऑल राइट, गुड नाइट एवरीवन।